Good morning, all of you. It is my immense pleasure to welcome you all in this virtual platform to attend webinar organized by the Department of Education, University of Lucknow. I take the privilege to welcome our patron, Professor Alok Kumar Rai, Vice Chancellor, University of Lucknow, for his precious presence. I welcome our Head of the Department, Professor Amita Bajpai, all the teachers from my department and all invited teacher educators in this webinar. Now I would like to start with few lines, especially with reference to lockdown and teachers. उलझन उहा पोह किंग कर्तव्य मकर जाल से जिंदगी बेचैनी बेबसी व्यस्ततम व्यस्त जिंदगी कुछ सपने कुछ अपने कुछ टूटे कुछ छूटे कुछ सपने कुछ अपने कुछ टूटे कुछ छूटे फिर भी सतत निरंतर चलती अपनी रफ्तार जिंदगी मोह जंजाल ये व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया उत्तिष्ठ जागृत अब कर्मठ बनने का नाम जिंदगी. Lines depicts that whatever is the situation, as a teacher, our minds should not be locked down. We have numerous online learning opportunities which we can access from our homes, thereby making good use of this lockdown period for skill enhancement. We feel honored to have with us our Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai. Sir, you hardly need any introduction because you have made all of us proud by your distinguished cooperation in numerous capacities, an idol of knowledge, experience and inspiration to all of us. I would request our Vice Chancellor to address our teacher educators by saying few words on the occasion of this webinar. Welcome, sir. Now, most respected Dean, Faculty of Education, Professor Amita Bajpai, Madam. I can see Professor Archana Bhodbole, Madam. I can see Professor Arun Kumar Ji from Faculty of Education, University of Lucknow. The organizing secretary of the webinar, Professor Kiran Dangwal, Madam. And on behalf of the university, I welcome all the participants to this webinar on e-content, especially for educators in teaching effectiveness. There are certain aspects, the micro aspects shall certainly be elaborated by the subsequent speakers. But then I would simply like to highlight certain aspects which I believe is extremely important. One is what is this E part in this e-content development? Content we all are aware of. Then what is this E part? There are a variety of aspects to this E part. Someone use the term online, someone e-content, someone in some other form people talk about, but it has got a specific meaning and specific connotation in which this has got to be used into. Second is teaching effectiveness. Teaching you all know, but then what is effectiveness in teaching? That also I would want the webinar to highlight upon. So if we put things into perspective, how can we make teaching effective by using e-content is what probably the very theme of this. We at University of Lucknow, it has been our endeavor to utilize this challenge posed by coronavirus and COVID-19 disease onto the entire humanity to use it as an opportunity for the growth and development of certain aspects which otherwise we probably would not have found enough time or energy or attention to. I'm happy to share some of the initiatives that have been undertaken by University of Lucknow. Many of you, I believe, are associated with University of Lucknow in one way or the other. So I am happy to share some of the information that we have initiated to convert this
challenge into an opportunity. First and foremost is, as our Honorable Governor repeatedly says, that there has to have a bonding of university with community. So your institution, University of Lucknow, has been working tremendously to bridge this gap of university and community, and there has been social responsibility of the institution that we are complying to. This is the 16th day of our community kitchen, which we are addressing to certain section of society which desperately needs our helping hand and support. So I not just inform you, but also invite you to come and participate in whatever little way you can. It may even be a huge contribution if you address your neighbors. Second is that University of Lucknow has initiated enormous innovation in this period. It started with our Department of Chemistry, which came up with a sanitizer, considering that there has been a huge dearth of sanitizers in the market. And using their expertise, they initiated this, and I am happy to announce that very soon we are going to enter into a technology transfer agreement with a commercial organization, which is also going to give monetary contribution to the university. Second was our concoction, which I have a packet of it. So this is the concoction Duran 19, which was even covered by international media. I had shared, probably our website has certain news items from French media. It was widely received, and somehow we are short of the raw material because of the lockdown. But as soon as the lockdown gets over, we are going to come up with the commercial production of it. Then we also initiated our esteemed faculty members of psychology department. They initiated with student counseling, their stress management counseling, and considering the expertise and the response that we have received, UP Police 112 entered into an MOU with the University of Lucknow for counseling of their police personnel. And over the content are being prepared, and those contents are constantly being delivered to those police personnel, and they are being trained for. Subsequently, it is a trainers training program sort of, where our Department of Psychology people are doing something. Then there had been certain examination reforms that we started with. Our Honorable Prime Minister keeps talking about Corona se harna nahi hai, Corona ko harana hai. So at University of Lucknow, we have initiated several things that let this be, because we being an educational institution and academic institution, we need to academically also update our students with respect to this huge crisis that has been posed by Corona. So in our MSc Biochemistry first semester program, we are going to introduce that from the coming session. I'm going to teach them in the first session of the paper of clinical biochemistry and physiology, this biochemistry and its transmission, and certainly sensitization about stopping mitigation of this crisis. We also have got an Institute of Public Health where we have got two programs. One is a regular program where we are going to, in semester 1, paper 2, we are going to introduce COVID-19, teaching COVID-19 in human biology and public health. Besides, we are also contemplating on a 1-year postgraduate diploma, online form, of course, in epidemiology and biostatistics, where in 2 modules we are going to introduce it as. One is clinical trials and case study. Second is clinical epidemiology. Then our police personnel counseling has been widely appreciated. Yesterday only I was approached by certain section of society where they wanted us to also provide some kind of counseling to people who are being quarantined. So a lot of mental stress these people are undergoing through. So very soon we are going to address that section also. Besides some management people, a certain section of administration has approached us, considering the expertise of our faculty members, 16 faculty members, is that should the staffers also be trained how to deal with these people? So that is another aspect that we are addressing. Now, with respect to, I'm extremely proud to announce
that University of Lucknow has done enormous development in the front of e-content. Now, when we talk of e-content, we do not talk of the e-content that are already available either by UGC on a variety of platforms or by private ये operators. म्यूट का ऑप्शन है. On them, variety of such online programs available. When I talk of this e-content or online study material, our online study material are largely created by our own esteemed faculty. Another important aspect of our online study material that I should share, and I happily share this with all you people, is that, you know, over 2,000 content has been placed on the homepage of the website. And they are in variety of forms. They are PowerPoint presentations, they are lecture notes, they are video lectures. There might be certain cases and other questions, variety of other forms. Why did we not use certain closed access learning management system and resorted to this open form of e-content option? Was that not just that we wanted also to serve the students of our associate colleges, but we wanted, because the quality of our faculty members are so wonderful, so nice, that we wanted that anyone on the earth, if who owns certain content, should actually be able to access the content that are available on our website. And that is the very beauty of this open access format of online study material. You know, I was told, like, for example, geology, which in University of Lucknow, there are only probably 2 institutions only that teaches PG level geology program. But the video lecture has got view of over 1,000. So certainly there have been clientele that were coming from outside. And this is for the greater good and greater service of the student fraternity, and not essentially confining it to the students of University of Lucknow. But all we have done is, we have got our central library, the Tagore library, has got very nice content available, so that this particular content in form of e-books or e-journals, during lockdown period, we have provided over 3,500 user IDs for remote access. Sir, sorry to interrupt you. Sir, please use bilingual. Sir, some are requesting you to speak also. तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है हमारे लाइब्रेरी के ऊपर, उसमें हम लोगों ने रिमोट एक्सेस प्रोवाइड किया. हमारे बहुत सारे अच्छी ई बुक्स हैं, करीब 9,500 के ऊपर, और उसमें हम सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के दौरान 20-25 दिन, पिछले 25-30 दिन के दौरान ही हम लोगों ने करीब 3,500 से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट किया, सो दैट वो किसी गांव में भी बैठे हैं तो देखें वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट, हमारे लाइब्रेरी के कंटेंट को. इस तरह से हम उस जो भी स्ट्रेंथ थी उसको हम लार्जर इस्तेमाल में अपने छात्रों के हित के लिए, के व्यापक हित में इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ये भी मुझे बताते हुए बहुत खुशी है. और हमारे प्रोफेसर डंगवाल का भाग है एकेडमिक से अपना अलग से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अलग से इन प्लेस करने की दिशा में कार्यरत है, जो बहुत जल्दी ही वी शैल बी एबल टू डू, और हम इसको कर पाएंगे. तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपका विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है. आप सब उसमें एजुकेशन के टीचर हैं, आप सब उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं हमारे कंटेंट को, हमारी क्वालिटी एनहांसमेंट में, और जो वेबिनार का थीम है टीचिंग इफेक्टिवनेस को बढ़ाना. तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस सेमिनार में मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर डंगवाल इस बात को हाईलाइट करेंगी, ये ई कंटेंट का सही मायने क्या है और टीचिंग इफेक्टिवनेस का सही मायने क्या है, और इन दोनों के बीच इस तरह का अंतर संबंध स्थापित किया जा सकता है व्यापक छात्र हित में. मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डीन मैडम प्रोफेसर अमिता वाजपेयी को, हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को, और मोस्ट स्पेसिफिकली प्रोफेसर डंगवाल को ऐसा एक इनिशिएटिव लेने के लिए. और जैसे मुझे कल बताया गया तो मैंने ये सूचना कई लोगों को प्रेषित की देश के अलग अलग भागों में, और हर्ष है कि बहुत सारे वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर लेवल के लोग
ये कह रहे थे कि साहब हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। मैंने आईआईटी के प्रोफेसर भी हमसे कह रहे थे कि हम इसमें जानना चाहते हैं। समाव हमारे टेक्नोलॉजी के अपने जो लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से हम लोग इस कार्यक्रम में तो उनकी शिरकत को इनवाइट नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा मैडम धनवाल इसको आगे जो अपना करेंगी उसमें उन सारे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अलग से एक कंटेंट इस पर ये करेंगी, जिससे हम इसका दीर्घकालिक शिक्षा के हित में कुछ साधन और कर सके। मुझे अवसर देने के लिए, आप सब एजुकेटर हैं, मैं तो प्रोफेशनली एजुकेटेड नहीं हूँ एजुकेशन में, बट मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वेबिनार अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you for your thought-provoking address in this virtual platform, which is very fruitful for all of us. As a teacher, we are going to learn many things. Now, I would request our head of the department to give an overview of the webinar, that how we are going to conduct this and what will be the norms of learning in this. Thank you, Kiran. Thank you, ma'am. मैं अमिता बाजपेयी, हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपने इस डिपार्टमेंट के पहले वेबिनार में अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक राय जी, हमारी रिसोर्स पर्सन एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द वेबिनार डॉक्टर किरण लता डंगवाल, मेरे डिपार्टमेंट के सहयोगी और मेरे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इतना क्रिटिकल टाइम है, हम लोग सारी सर्विसेज, सारी इंडस्ट्रीज, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं और हम लोग एकदम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, नर्सेज हैं और हमारी जो जरूरत की चीजें हैं कुछ, वो लगातार फ्रंट पे रहकर इस कोविड-19 से लड़ रहे हैं। पर हम लोगों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। घर में रहकर भी हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं। हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो अपनी भूमिका, उनके जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं घर में रहते हुए भी। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके संचालन की बागडोर इस समय एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है जो न केवल बहुत दूरदृष्टि ही रखते हैं बल्कि ऊर्जा और उत्साह से बढ़े रहते हैं, न केवल खुद भरे हुए हैं बल्कि दूसरों को भी अपना श्रेष्ठतम देने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो आज का ये जो वेबिनार है वो भी उनके ही प्रेरणा की वजह से संभव हो पाया है। जैसा कि आपने उनके संबोधन में आप लोगों ने भी सुना होगा, हर विभाग, विद्यालय का हर विभाग अपने अपने स्तर पर इस महामारी से लड़ने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो कर रहा है, चाहे वो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए हो, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो घरों में लॉक्ड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके एंजाइटी को कम करने के लिए काउंसलिंग हो, या उनके कैरियर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंजाइटी है, उनको दूर करने के लिए प्लेसमेंट सेल के द्वारा किया जा रहा काम हो। तो ये सारी चीजें अभी आपने जानी कि विश्वविद्यालय में इतना सब काम हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो था, हमारे विद्यार्थियों के लिए हमने जो ई कंटेंट अपलोड किए हैं, अभी आपने माननीय कुलपति जी के संबोधन में सुना होगा कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स तक, इतना वेबसाइट, इतना वाइडर सर्कुलेशन है हमारे कंटेंट का, इतने लगातार इतने हिट हमारे ई कंटेंट पे, हमारे यूट्यूब में जो वीडियोस अपलोडेड हैं उन पर हो रहे हैं। जरूरी हो जाता है कि हम जो भी ई कंटेंट अपलोड करें अपनी वेबसाइट पे, उसकी क्वालिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी हम इंश्योर कर ले। हमने हमारे वाइस चांसलर ने न केवल हम लोगों को प्रेरित किया कि हम ई कंटेंट डेवलप करें और अपलोड करें, बल्कि हमारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि वो भी अपने अपने विषयों में ई कंटेंट डेवलप करें, यहाँ तक भेजें, और अगर हमें लगता है कि हम उसकी क्वालिटी पर हम संतुष्ट हैं तो हम उसे अपलोड करेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस समय हम ये बताएं कि जो ई कंटेंट तैयार करना है वो कैसे तैयार किया जा सकता है।
दो पार्ट है इसमें, कंटेंट और ई। कंटेंट को कैसे बनाना है, कैसे कंटेंट एकत्रित करना है, जगह जगह रिसोर्सेज से हमें कलेक्ट करना है और फिर उसको कैसे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है, ये एक पार्ट होता है। और दूसरा, उस कंटेंट को हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ले जाएं, किस तरह उसे अपलोड करें, किस तरह उसे इंटरेस्टिंग बनाएं, किस तरह हम उस कंटेंट में केवल वर्ड फाइल ना होकर कैसे हम ग्राफिक्स ला सकते हैं, कैसे हम उसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेहतर बना सकते हैं, उन सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। हमने ये एक पूरी सीरीज ऑफ वेबिनार प्लान करी है। जैसे सर ने बताया, इतनी ज्यादा डिमांड थी, जैसे ही हमने इसको वेबसाइट पर डाला इतनी ज्यादा डिमांड थी, लेकिन अभी हमने इसको केवल अपने टीचर एजुकेटर्स तक सीमित रखा है। अभी एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एक्सपोनेंशियल, है ना। कोरोना वायरस जो है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। तो मुझे लगता है जब हम अपने टीचर एजुकेटर्स के साथ कोई काम करते हैं तो वो भी एक्सपोनेंशियल तरीके से वो उसका वाइडर सर्कुलेशन हो जाता है, क्योंकि यही टीचर एजुकेटर्स जब क्लास में जाते हैं तो ये टीचर अपने अपने कॉलेजेस में फ्यूचर टीचर्स तैयार कर रहे हैं, तो जब ये सीखेंगे ये उन टीचर्स तक पहुंचाएंगे, और वो जब अपने स्टूडेंट्स के लिए जब टीचर बनेंगे, अपने स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट तैयार करेंगे, तो उस सारी चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है जब हम टीचर एजुकेटर को हिट करते हैं, जब हम टीचर एजुकेटर को टारगेट पॉपुलेशन की तरह लेते हैं, तो जो कुछ भी हम पहुंचाना चाहते हैं वो एक्सपोनेंशियल तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है किस तरह ई कंटेंट डेवलप किया जाए। हमारी रिसोर्स पर्सन आप सब जानते हैं, डॉक्टर किरण लता डंगवाल हमारे विभाग की हैं। हमारे विभाग में आईसीटी एक्सपर्ट हैं, उनको भी किसी परिचय की जरूरत नहीं है, आप सब उनसे परिचित हैं। तो बिना कुछ अधिक समय लिए मैं किरण मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, सेंटर स्क्रीन लें और जो कुछ भी वो जानकारी देना चाहती हैं ई कंटेंट के बारे में जानने दें, और हम लोग सब उनका इंतजार कर रहे हैं। Now I am starting my presentation. This is all about e-content. E-content को लेके बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि हम आखिर ई-कंटेंट का मतलब क्या है। जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम ई-कंटेंट की बात करते हैं तो ई-कंटेंट में कुछ भी ई है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक है, वो कंटेंट हमारा ई कंटेंट हो जाता है। बट नो, ये सही नहीं है कि whatever is available in वेबसाइट या इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट इज नॉट ई कंटेंट। तो लेट्स हैव अ लुक कि ई कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है, हमें इसको डेवलप कैसे करना है, कैसे इसका यूज करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारा टर्म आता है दैट इज आईसीटी, क्योंकि हम सारी चीजों को कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, अपने कंटेंट को ई कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो जानने की जरूरत होती है दैट व्हाट इज आईसीटी एंड हाउ आईसीटी इज इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग स्पेशली फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, व्हाट इट इज मेकिंग, व्हाट इट इज डूइंग, हाउ इट इज मेकिंग आवर टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। तो इसमें तीन टर्म आ रहे हैं, आईसीटी। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन, टी मीन्स टेक्नोलॉजी। एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ आईटी हुआ करता था, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी whatever information is there in the world or in the universe or in the society, we can get that information in the form of with the help of technology। तो बहुत सरल था हमारे लिए, रेडियो हुए, हमारे बहुत सारे ये टीवी हुए, ऐसी ऐसी चीजें हुई जिनके द्वारा हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद ये सोचा गया कि इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, हम इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा आपस में जो दूर बैठे हैं उनके साथ बातचीत कैसे करें, इसको अंतःक्रियात्मक कैसे बनाएं, कैसे हम एक दूसरे के संपर्क में आए। तो और एनहांसमेंट हुए, और भी चीजें उसमें डेवलप की गई,
तब ये टर्म कन्वर्ट हुआ ICT के रूप में, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन टर्म हो रहा है, एंड एज यू ऑल नो दैट कम्युनिकेशन इज रेसिप्रोकल, दोनों तरफ से होता है, और दोनों तरफ से होने के कारण क्या होता है इसमें कि हम आराम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। तो जब ये ICT आ गया, ICT का डेवलपमेंट हो गया, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए इतनी यूजर फ्रेंडली हो गई, इजी टू यूज हो गया कि हम आराम से काम को करने लगे। अब देखिए इसमें जब जो ICT था, ICT provides innovative ways to help students. इनोवेटिव वेज कैसे वो कर रहा है, देखिए कि एक नए नए तरीके से आज भी जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं चीजों को, तो कैसे सीख रहे हैं कि हमने एक नए तरीके से आपस में मिलने का एक जरिया बनाया, आपस में एक सेमिनार का जरिया बनाया, आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वी ऑल आर टीचर एडुकेटर्स, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मीट वन अनदर टाइम टू टाइम। व्हाई? Because we need many things, because we need to contact with our students also. तो जब स्टूडेंट से हमें मिलना है तो हमें भी ये जानने की जरूरत होगी कि कौन से जरिए ऐसे हैं, कौन से नए नए तरीके हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें, अगर मान लीजिए आपको ये प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप से करना है और यू आर नॉट हैविंग कैमरा इन योर डेस्कटॉप, देन हाउ यू विल डू दिस वेबिनार। तो यही चैलेंज हमारे लिए भी आया, लर्न किया, कोशिश किया कि हाउ आई कैन मेक माय मोबाइल, हाउ आई कैन यूज माय मोबाइल एज अ वेब कैमरा। उसकी टेक्नोलॉजी सीखी, यानी एक इनोवेटिव वे ढूंढा। फिर कैमरे को हम कैसे लगाएं, अपने मोबाइल को कैसे लगाएं, ये सीखा। तो छोटी छोटी क्रिएटिविटी हमको सिखाती है ये टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजें सीखने के बाद हमने ये पूरा वेबिनार करने में अमिता मैम के साथ हम कई बार, बहुत मेरे ख्याल से नहीं होगा 100 क्वेरीज की मैडम ने हमसे, हमने मैडम से, हम लोगों ने आपस में, पूरी फैकल्टी ने सोचा कैसे करें, क्या करें। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि पहले जो सेमिनार हम इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ करते थे, वो हमारी बहुत छोटी सी व्यवस्था के साथ वेबिनार हम स्टार्ट कर पाए। अब आते हैं कि नेक्स्ट इसमें कैसे, जो हमारा आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक मिनट हम सबको। जी मैम, बिल्कुल शेयरिंग हो रही है मैम, यू कंटिन्यू प्लीज। ओके 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 मैम, आप बताते रहिएगा बीच में, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन। जी मैम, आई विल लेट यू नो, प्लीज कंटिन्यू। ओके नाउ, अब ये जो ICT की बात हम कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि ICT इन एजुकेशन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अमंग टीचर्स एंड लर्नर्स, or the advancement in technology and the plethora of powerful and innovative digital devices and tools have great potential to improve educational outcomes. और educational outcomes क्या हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हम all the teachers, प्रोफेसर दिनेश कुमार। थैंक यू डॉक्टर किरण जी। बहुत बढ़िया, एक सक्सेसफुल वेबिनार रहा और लगभग पिछले 1.5-2 घंटे हो गए हैं, बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ लोग सुन रहे हैं। लेकिन फॉर्मल धन्यवाद के लिए मैं सबसे पहले अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए भी कि एक यशस्वी कुलपति के साथ साथ बहुत विजनरी कुलपति हैं, और जो हम एक कर रहे हैं हमें लगता है उनके प्रेरणा की वजह से कर रहे हैं, और उनके जो मोटिवेशन, उनकी प्रेरणा की वजह से आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत की लीडिंग में हम लोग लगे हुए हैं, छाए हुए हैं, जहां पर इतना सारा कंटेंट डेवलप किया, यूट्यूब डेवलप किए, और हमें लगता है ऑलमोस्ट हमारे जो विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग है यूट्यूब चैनल्स अपना बना लिए हैं, है ना। इसलिए ऐसे विजनरी कुलपति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमें लगता है सर अभी भी हम लोगों को सुन रहे हैं, 2 घंटे लगभग टाइम दिए हैं, सबको सुन रहे हैं, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं विभाग की जो हमारी विभागाध्यक्ष मैडम हैं प्रोफेसर अमिता वाजपेयी जी, जिनकी प्रेरणा की वजह से ये वेबिनार संपन्न हो पाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। संयोजिका डॉक्टर किरण लता डंगवाल जो हमारी क्लास फेलो भी रही हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि
जो ई कंटेंट और ई टेक्स्ट की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, बहुत सारे कंफ्यूजन सब लोगों के थे और हमें लगता है कि ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी भी हैं, हमारे साथ के लोग हैं और ये चीज़ें सीखे होंगे कि ई कंटेंट जो है वो क्या है, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं और साथ ही साथ ये भी बात किया है कि ये कंटेंट बनाते समय हम किन किन सावधानियों को ध्यान में रखें। प्लेगरिज्म की बात करते हैं, आईपीआर की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करें, बहुत सारा डिटेल में डॉक्टर किरण लता डंगवाल जी ने इसको बताया है। हमें लगता है कि बहुत ही उपयोगी हम लोगों के लिए रहेगा। अभी भी लॉकडाउन में थोड़ा समय लग रहा है और आज के तारीख से यदि हम इस ई कंटेंट को समझ करके बनाएंगे तो हमें लगता है न केवल हमें बल्कि हमारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो किरण जी को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय से हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, जिसमें स्क्रीन पर अनुराग खरे जी दिख रहे हैं, दया जी दिख रही हैं, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी लोग हैं, गौरव राव भी दिख रहे हैं जो बरेली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, अर्चना पांडे जी दिख रहे हैं, बहुत सारे, मैं नाम तो सभी के जाना हो जो स्क्रीन पे हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने उत्साह के साथ इस जो वेबिनार में पार्टिसिपेट किए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।